Hello. Now we are going to learn about some specific types of quadrilaterals. When I say quadrilaterals, it always means shapes with four sides. So today and next lecture, the two lectures which we are going to do, all are going to have two four sides, compulsory four sides. तो पेंटागन, हेक्सागन, ट्राइंगल सब भूल जाओ, फोकस ऑन क्वाड्रिलैटरल. चैप्टर का नाम है क्वाड्रिलैटरल्स जो अब शुरू हो रहा है. The first type of quadrilateral which we are going to do is called a trapezium. So take your notebook and write down trapezium as a topic. Now write down properties. Properties ही है जो पूरे 8th, 9th और 10th में काम आएगी. Properties मतलब unique things. Like if I say apple, what are the properties of an apple? मतलब एप्पल के बारे में कुछ सेंटेंसेस लिखने. Apple is white from inside. Apple is red from outside. Apple is very healthy. Apple has seeds inside it, etc. तो एप्पल के बारे में जो सत्य वचन है वो लिखना है. इस चीजों से ये एप्पल बनता है. इन अ सेम वे ट्रपीजियम को ट्रपीजियम क्यों कहते हैं? उसकी प्रॉपर्टीज की वजह से. राइट डाउन प्रॉपर्टी नंबर 1. इट हैज only and only one pair of parallel sides. It has only and only one pair of parallel sides. Number 2, adjacent angles adjacent angles, two pairs are supplementary, which I will explain you in a short time. Number 3, nothing special about diagonals. Nothing special about diagonals. And number 4, isosceles trapeziums have other sides congruent. These are the four sentences which you are supposed to write as properties of trapezium. It has only one pair of parallel sides. Adjacent angles, two pairs are supplementary. Nothing special about diagonals, and isosceles trapezium have other sides congruent. Keep this in front of you while I'm explaining the trapeziums, that why something is called trapezium and why something is not called trapezium. ट्रपीजियम में एक पेयर पैरेलल लाइन होती है. पैरेलल का मतलब है लाइंस विच नेवर मीट. एक सीढ़ी जो ऊपर चढ़ने के काम आती है, तो सीढ़ी में उसके जो दो साइड के बैम्बू होते हैं, दे आर कॉल्ड पैरेलल्स. प्लस जो पैर रखने की जगह है वह ऐसे होते हैं टेढ़े मेढ़े नहीं, they are always parallel. That's called parallel lines. You take any rectangle,
take take a rectangle. The top side is parallel to the bottom side and the right side is parallel to the left side. तो पैरेलल दिखाने के लिए हमेशा एरोज यूज होते हैं. These arrows means that these two lines are parallel like this, and these arrows mean that they are parallel like this. But यहाँ कभी एरो नहीं कर सकते बिकॉज ये दो पैरेलल नहीं है, आगे जाके वो एक दूसरे को कट करती. Therefore they are not called parallel. पैरेलल लाइंस को जितना भी आगे खींचो वो एक दूसरे को कभी कट करेगी नहीं. So always there is one pair of parallel lines which I am drawing with red here, and therefore it becomes a trapezium. So all four has parallel lines, and the other pair should compulsorily be not parallel. ये straight है, ये slanting है, not parallel. These are also not parallel. ये ऊपर जा रही है और ये flat है, not parallel. ये लग रहा है parallel, but ऐसा कुछ हो तो not parallel हो जाएगा. This looks like it is parallel, और अगर ये parallel है तो ये trapezium है ही नहीं. So remember, trapezium में सिर्फ और सिर्फ एक जोड़ी parallel line होनी चाहिए. तो let us discard this figure, not a trapezium. और यहाँ पे there is no side which is parallel. This side is one arrow, ये two arrow है, मतलब ये parallel नहीं है. ये three arrows और ये four arrows. तो एरो से पैरेलल पता चलता है. वन एरो है तो वो पैरेलल है, बट 1 वर्सेस 2 या 3 वर्सेस 4 है तो नथिंग इज पैरेलल. यहाँ पे भी सब उठपटांग है. 1 2 3 4, कुछ पैरेलल नहीं है. अच्छा, व्हाट इज द अदर वे ऑफ नोइंग पैरेलल है कि नहीं? अगर वो लाइन को एक्सटेंड किया और ज्वाइन करने की कोशिश की तो वो एक दूसरे को कट करेंगे. सो इफ आई एक्सटेंड दिस लाइन and extend this line, तो see they are coming close to each other, आगे जाके एक दूसरे को कट करेंगे. If I extend this line and this line, they are also coming close, therefore it is not a trapezium. But I think इसमें parallel line है. तो फिर ये trapezium क्यों नहीं है? Because trapezium is a quadrilateral with 4 sides, जबकि ये 5 साइड वाला फिगर है. ये तो क्वाड्रिलैटरल ही नहीं है. आई होप तुमको समझ में आया. ट्रेपेजियम इज समथिंग विच वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स. व्हाट एल्स? सेकेंड सेंटेंस पढ़ो. एडजेसेंट एंगल्स टू पेयर्स आर सप्लीमेंट्री. एडजेसेंट एंगल मतलब पड़ोसी एंगल. तो अब ड्रॉ करने का टाइम आया है. ड्रॉ व्हाट आई एम ड्रॉइंग. आई एम ड्रॉइंग दिस फिगर. 1 2 3 4. हाथ से ड्रॉ करो, स्केल से ड्रॉ करो, इट इज ओके. नेम बॉटम लेफ्ट कॉर्नर से ए बी सी डी. अब लिखो नंबर 1, ए बी पैरेलल टू सी डी, और सिंबॉलिकली दिखाने के लिए एरो एरो. दैट्स द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेपेजियम व्हिच आई एक्सप्लेन्ड यू. नंबर 2 जो तुमने लिखा है वो अब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं. जो भी पैरेलल है जहां पे तुमने 2 एरोस किए हैं, वो 2 एरोस को एकदम लाइट पेंसिल से डॉटेड लाइन से ऐसे डिवाइड कर दो, एकदम लाइट.
और यहां पे लिखो H और यहां पे P। H मतलब हिंदुस्तान, P मतलब पाकिस्तान, और बीच में डॉटेड लाइन है मतलब बॉर्डर है, और बॉर्डर कहां बनाने की, दो एरो को ज्वाइन करनी। तो अब द सेकेंड पॉइंट सेज एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। पहले एडजेसेंट वर्ड का मतलब समझो। एडजेसेंट मतलब पड़ोसी। एंगल 1, 2, 3, 4, तो 1 का पड़ोसी 2 है, तो 1 इज एडजेसेंट टू 2, बट 1 का पड़ोसी 4 भी है, so 1 is adjacent to 4 also. So adjacent angle of 1 is 2 and 4. But 2 का adjacent कौन है? 2 का adjacent है 1 and 3. 2 का पड़ोसी 1 and 3. 3 का adjacent कौन है? 3 का पड़ोसी 2 and 4. And 4 का पड़ोसी 3 and 1. वैसे D का पड़ोसी A और C है, बट ये बॉर्डर ड्रॉ करने का मतलब है कि बॉर्डर के इस तरफ के दो एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। मतलब highlight D like this, highlight A like this in the figure, and write down angle A and D are adjacent. Therefore, angle A plus angle D is 180. कोई भी ट्रेपीजियम में बॉर्डर के इस पार हिंदुस्तान के दो एंगल्स का टोटल 180 होता है। सिमिलरली पाकिस्तान के दो एंगल्स जो एडजेसेंट है, एंगल सी एंड बी आर एडजेसेंट, therefore C plus B is also 180. That's what I was trying to say. यहां पे ऐसे राउंड करो, उसको फिल मत करना। तो बॉर्डर समझना बहुत जरूरी है, तुम ड्रॉ करो कि नहीं, बट अंडरस्टैंड दैट A and B are also adjacent, but they are not supplementary. D and C भी पड़ोसी है, ये जैसे 1 और 4, but they are not supplementary. थर्ड रूल में लिखा है नथिंग अबाउट डायगनल्स। तो ये जो डायगनल है इनके बारे में कुछ खास नहीं है। देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट देयर साइज, देयर एंगल, नथिंग। बस वो बाद में समझ में आ जाएगा, मतलब कोई पॉइंट ही नहीं है, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ड्रॉ करो तो ठीक, ना करो तो भी ठीक। एंड द लास्ट पॉइंट क्या लिखा था, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। यस, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। अब वापस एक बार एक नया फिगर ड्रॉ करेंगे। एक, फिर यहां से एक, ये एग्जैक्ट सेम होनी चाहिए, एंड जॉइन। तो ये और ये साइड सेम है, वो ज्योमेट्री में ऐसे दिखाते हैं, डू अ स्मॉल डैश एंड एरो। एरो मतलब पैरेलल। बॉटम लेफ्ट कॉर्नर से नाम दिया जाए PQRS, PQRS। पॉइंट नंबर 1, ट्रेपीजियम की खासियत PQ पैरेलल टू RS। पॉइंट नंबर 2, अब बॉर्डर याद है, वो ड्रॉ करने की चीज नहीं है, बट सिंस आई एम नॉट इन फ्रंट ऑफ यू, ये दो एरोस को ज्वाइन करके बॉर्डर बनाओ, तो एक तरफ हिंदुस्तान, दूसरी तरफ पाकिस्तान, तो S और P आर सप्लीमेंट्री, और R और Q आर सप्लीमेंट्री। सो व्हाट विल यू राइट, एंगल S plus P is 180 and angle R plus Q
is 180. थर्ड, डायगनल के बारे में तो कुछ है ही नहीं, सो सिर्फ डायगनल लिख दो कि भाई होते हैं दो डायगनल. नाउ आई एम मेकिंग यू राइट द फोर्थ पॉइंट, which is if SP is equal to RQ, साइड के दो जन की लंबाई सेम है, then only trapezium ABCD is called isosceles trapezium. बस, अगर दो नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है तो उसको हम क्या बुलाएंगे? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम. और अगर आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है तो S और R की वैल्यू सेम आती है, S और R सेम हो जाते हैं और P और Q सेम हो जाते हैं. तो ये डार्क डार्क एंड डबल आर्क ड्रॉ कर दो और लिख दो therefore angle S is equal to R, P is equal to Q. That's all what you need to know about trapezium. ट्रपीजियम के बारे में जो भी जानना चाहिए वो इसमें कवर हो गया है. Now some fun. You have to go to Google and write maths is fun quadrilaterals. Maths is fun quadrilaterals. और सबसे पहला जो लिंक आएगा वो क्लिक करो. ये फोन में शायद ना चले, आई डोंट नो. एंड लुक एट दिस. Any parallelogram, square, rectangle, rhombus, trapezoid and kite, click trapezoid. And you can move this. Just observe when I am moving it. Can you see कि कोई दो साइड्स पैरेलल है जो अपनी पैरेलल एटीट्यूड छोड़ ही नहीं रहा है? गेस करो कौन से है वो दो पैरेलल. अबे डी बाहर आ जा. डी को बाहर कैसे बुलाए? Sorry, I'm lost. Reset. Okay. A. तुम देखते रहो, ढूंढते रहो कि कौन सी दो साइड पैरेलल है जो चिपकी रहती है. Anyways, enough I have played. Let me come to the point now. A and B, लेफ्ट टू राइट लिखो है, राइट टू लेफ्ट कोई फर्क नहीं पड़ता. ABCD अरे बड़े हो जा बेटा. Anyways, this is called a trapezium. Why? Because ABCD are parallel और तुम कितना भी हिलाओ वो पैरेलल ही रहता है. Therefore it is a trapezium. और बाकी की दो साइड्स पैरेलल नहीं है. Therefore it's a trapezium. Now I'm going to show you about the angles. एंगल्स को ध्यान से देखो. तुम जैसे मूव करते हो वैसे एंगल बदलते हैं. ए रीसेट ट्रापेजॉइड.
ओके, टेढ़ा है लेकिन इतना तो समझ में आता है कि ये ट्रेपेजियम है बिकॉज द टू साइड्स आर पैरेलल. विच टू साइड्स आर पैरेलल? AB parallel to DC. That's the first thing you should be able to find out and write down. AB parallel to DC. सेकेंड, दो डॉटेड लाइन के बीच में बॉर्डर है तो इंडिया पाकिस्तान पता चल गया. इसका मतलब तुमको पता होना चाहिए दैट B प्लस C शुड बी 180 है. चेक करो, B 121 नहीं, B 59 है और C 121 है. यस इट इज ट्रू कि उनका टोटल 180. A प्लस D भी 180 होना चाहिए. हो रहा है. A is 68, D is 112. Yes, it is possible. डायगनल्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं. और फोर्थ पॉइंट था ये साइड्स के बारे में कि अगर साइड की दो साइड सेम है तो वो आइसोसेलेस गिना जाएगा. क्या सेम है? दिखती तो है बट है नहीं, क्योंकि होती तो ये एंगल्स सेम होते. तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम एक बार बनाने की कोशिश करते हैं. This is an isosceles trapezium. So क्या बोलते हैं, ये है पैरेलल लाइंस. तो ये इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर, तो ये हिंदुस्तान, ये पाकिस्तान, और हिंदुस्तान पाकिस्तान का टोटल 47 प्लस 133 इज 180. और यहाँ पे भी 47 प्लस 133 is 180. So please open this software, play yourself and find out more about trapezium. कुछ भी करो, पैरेलल लाइंस रहती ही है. Okay, going back, we have learned the 4 points. I've shown you examples. Let's learn something about the kite. तो second topic लिखो, kite. फिर लिखो properties. Kite properties. Number 1, two pairs of adjacent sides are congruent. Two pair of adjacent sides are congruent. पापा ने एक बेबी को वी बना के दिखाया. तो बेबी ने सामने एक दूसरा वी बनाया. पापा की उंगलियां बड़ी है और दोनों सेम है, ऐसा हम अज्यूम करते हैं, और बच्चे की उंगलियां छोटी है और दोनों सेम है. तो इससे काइट बनता है. द टॉप टू साइड्स विच आर क्लोज टू ईच अदर आर सेम and the bottom two sides which are close to each other are same.
two pair of adjacent sides are congruent, मतलब same in length. Second, diagonal 1 perpendicular to diagonal 2 bracket angle O is 90. थोड़ी देर में सब धीरे धीरे समझाऊंगा. Angle O is 90. O is midpoint of only one diagonal. O is midpoint of only one diagonal. Therefore, O bisects one diagonal. O bisects one diagonal. I think इतना ही है. So two pair of adjacent sides are congruent. Diagonal 1 is perpendicular to diagonal 2, and O is the midpoint of only one diagonal, which means O bisects one diagonal. लिखो नोटबुक में so that I can start explaining. जब मैं explain कर रहा हूं तो बुक में देखते रहना कि कौन से वर्ड का क्या मतलब है. All right, let me go to the figure of kites. The first sentence is two pair of adjacent sides which are congruent. Adjacent मतलब बाजू बाजू में. तो पहले तो वापस मैंने एंगल का पड़ोसी पना तो दिखाया था. अब मैं साइड्स का एडजेसेंट समझा रहा हूं. व्हाट इज एन एडजेसेंट साइड, व्हाट इज एन ऑपोजिट साइड. तो ये या तो दिमाग में ठूस लो या कॉर्नर में कहीं लिख लो. एडजेसेंट साइड मतलब बाजू वाला साइड, और ऑपोजिट मतलब सामने वाला. सामने और बाजू में फर्क समझ में आता है. somebody is sitting opposite you and somebody is sitting next to you. so adjacent side मतलब बाजू वाला. तो AB के दो adjacent sides है. कौन से? तो AB के बाजू में एक तरफ AD है और दूसरी तरफ BC. AD BC, that's adjacent sides. BC का adjacent side कौन है? BC का पड़ोसी एक तरफ है CD और दूसरी तरफ है BA. CD BA because they are joint. तो ये साइड के दो पड़ोसी साइड है. CD का पड़ोसी कौन? तो CD का पड़ोसी CB एंड DA. और ED का पड़ोसी कौन? DCAB. Copy this. Pause the video, draw this figure and copy के adjacent side किसको बोलते हैं और हर एक की दो adjacent side होती है. AB, BC, CD, DA की ऑपोजिट साइड एक ही होती है. AB के सामने वाली साइड AB के सामने DC है. BC के सामने वाली साइड BC के सामने AD है. CD के सामने AB और DA के सामने BC. Copy this with the figure and remember forever the simple concept of
adjacent side and opposite side. चलो वापस जाते हैं. प्रॉपर्टी नंबर 1, देर आर टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स विच आर कॉन्ग्रुएंट. मतलब एक जोड़ी है ए बी ए डी की जो सेम है, मतलब ये डैश डैश किया है टू शो दैट दोनों की लंबाई सेम है और एडजेसेंट है, और दूसरी जोड़ी है बी सी डी सी. बट अंदर अंदर सेम नहीं है, देयरफॉर यहां पे डबल डैश यूज किया है. सो रेड जोड़ी सेम, ब्लू जोड़ी सेम, बट रेड ब्लू सेम नहीं है. बस इतना करो तो काइट बन जाता है. ये रेड वाले बच्चे के फिंगर्स है, ब्लू वाले पापा के फिंगर्स है, छोटे फिंगर बड़े फिंगर, बट अंदर अंदर फिंगर्स आर सेम. अज्यूमिंग, एक्चुअली फिंगर सेम नहीं होते बट अज्यूम. ये डबल डैश, ये भी डबल डैश, तो ये सेम. तो काइट है कि नहीं वो चेक करने के लिए तुम ये देख सकते हो साइड्स के बारे में कि अगर आस पड़ोस की दो साइड सेम और दूसरी दो सेम. पैरेलल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, रिमेंबर दैट प्लीज. इट इज नथिंग टू डू विथ पैरेलल एंड इट इज टू डू विथ द लेंथ ऑफ द साइड्स. कितनी लंबी है. पॉइंट नंबर 2 क्या था. diagonal 1 is perpendicular to diagonal 2. Now see very carefully. diagonal 1, diagonal 2, diagonal मतलब ए सी बी डी. आमने सामने के पॉइंट्स को ज्वाइन करो तो डायगोनल बनता है. इसका नाम काइट है, पतंग, और पतंग में दो दो स्टिक होती है. फॉरगेट द कर्व, but if there are two sticks then there is a fixed rule that both the sticks intersect each other at O और O पे 90 डिग्री क्रिएट होता है. दिस इज कॉल्ड AC परपेंडिकुलर टू BD और BD परपेंडिकुलर टू AC. जो बोल रहा है वो, बट यहां पे राइट एंगल होता है. दैट्स पॉइंट नंबर 2, 90 डिग्री कंपल्सरी. थर्ड पॉइंट समझा रहा हूं अब. क्या था. O is only the midpoint of one of the diagonal. Okay, now what I'm going to do is print screen, paint, paste. ध्यान से देखो, मैं सिर्फ डायगोनल्स ड्रॉ करूंगा तो यू विल फाइंड समथिंग यूनिक. Right? The uniqueness is O is the midpoint of BD, but O is not the midpoint of AC. O is the midpoint of this diagonal, but it is not midpoint of this diagonal. O is the midpoint of this diagonal, but it is not midpoint of this diagonal. ज्योमेट्री की लैंग्वेज डॉट्स एंड डैशेस करके बहुत कुछ कह जाती है.
This is a code language. What is the code language? The code language is, first, the diagonals intersect each other at 90. So this is 90 degree, जो हमको पता है ये 90 90. सेकेंड सिंबल डैश डैश का मतलब है ओबी ओडी सेम. ओबी इज इक्वल टू ओडी. एंड लॉजिकली सोचो, अगर ओबी और ओडी सेम है तो ओ मिड पॉइंट है. और ये डबल डैश और ट्रिपल डैश का मतलब है ओ ए एंड ओ सी आर नॉट सेम, जो आंखों से दिखता है. तो ये दो सेम और ये अलग, ये अलग. देयरफॉर ओ bisects one diagonal but does not bisect the other diagonal. डैश 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 तो नहीं यूज कर सकते. क्यों नहीं यूज कर सकते? बिकॉज ऑलरेडी यूज कर दिया डैश. सो आई से एस एस. तो ये दोनों सेम. और यहाँ पे 3 डैश और यहाँ पे 4 डैश. तो 1 डैश वाली 2 रेड साइड सेम, 2 डैश वाली 2 ब्लू साइड सेम, 3 और 4 डैश अलग अलग, और ये एस एस सेम. दैट इज कॉल्ड kite. So now I want you to draw a kite. You have written 4 properties till now. Let's start drawing. Draw with me a kite. See how I'm drawing. ये दो साइड सेम होनी चाहिए. थोड़ा सा बड़ा करना. Draw big kite. तो चौखा चौखा रहेगा. यहाँ पे ये दो सेम होनी चाहिए. नेम ऊपर ए, नहीं पी क्यू आर एस दे. ऊपर पी क्यू आर एस. जॉइन द डायगोनल्स येलो ही रखते हैं. क्यू एस यूज अ स्केल. पी आर. they generally it is called O, where they intersect, and it is 90. PQ PS same, dash dash. QR RS same, double dash double dash. O midpoint है diagonal का, तो S S same. और ये 3 डैश और ये 4 डैश मतलब कंप्लीटली अलग. लिखो प्रॉपर्टी नंबर 1. PQ is equal to PS and QR is equal to SR. ब्रैकेट में 2 pair of adjacent side are congruent. 2 pair of adjacent sides are congruent. Point number 2. PR perpendicular to QS. ब्रैकेट में D1 perpendicular to D2. Therefore angle O is 90. परपेंडिकुलर में हमेशा 90 डिग्री होता है. पॉइंट नंबर 3 क्या होगा? पॉइंट 3 भूल गया. हाँ, ओ बाइसेक्ट. बाइसेक्ट मतलब बीच में से कट करता है. ओ बाइसेक्ट्स QS. Therefore OQ is equal to OS. QS के दो इक्वल टुकड़े मतलब OQ और OS सेम. ब्रैकेट O do not bisect PR, क्योंकि एक टुकड़ा छोटा और एक बड़ा है. इतना काइट के बारे में जानो. एक और चीज, आई वॉन्ट यू टू गो बैक जहां तुमने प्रॉपर्टीज लिखी थी और क्या लिखा गया?
add one property, property number 4. One pair of opposite angles are same. One pair of opposite angles are same. मतलब क्या? पहले तो ऑपोजिट एंगल समझो, वापस एक बार टेक्सचुअल डायग्राम्स में जाते हैं. ऑपोजिट एंगल्स क्या है? ए एंगल है, ए का ऑपोजिट एंगल इज सी एंड दे आर नॉट सेम. बी का ऑपोजिट एंगल डी एंड दे आर सेम. तो तुमको ये मैन्युअली याद रखना पड़ेगा कि जो डायगोनल बाइसेक्ट हो रहा है उसके बाजू वाले दो एंगल सेम है. दिस इज द डायगोनल विच इज बाइसेक्टेड, so this angle is same as this angle. This is the diagonal which is bisected, this is the diagonal which is not bisected, therefore this angle and this angle are same. Basically पतंग को जहां से पकड़ते हो, पतंग को जहां से पकड़ते हो, पतंग उड़ाई है ना, तो यहां से पकड़ते हैं और यहां डोरी बांध के ऊपर उड़ाते हैं. These two angles are always same. So go back to this neat figure which I hope you have drawn, और उसमें पूरे एंगल Q को डार्क कर दो और पूरे एंगल S को डार्क कर दो. This is the one pair of opposite angles which are equal. Always angle Q is equal to angle S. Opposite angle pair. ये बन गई काइट की कुंडली. इतना याद रहेगा तो काइट के सारे सम सॉल्व हो सकते हैं. Back to fun, which I strongly recommend that you should do. प्रॉपर्टीज बुक में होनी चाहिए और हाथ में मोबाइल या लैपटॉप, और काइट के साथ खेलना है और उसके एंगल्स को ध्यान में रखना है. काइट को कैसे भी हिलाओ, 103 103, सी और ए बदलेंगे नहीं. जाओ जाके कुछ भी होता है वो कर लो, बट एंगल सी और एंगल ए चेंज नहीं होंगे. दैट्स द ब्यूटी ऑफ काइट. घुमाओ उससे वो फर्क नहीं पड़ता, सीधा रखो, इजी टू स्टडी. ऊपर और नीचे के एंगल अलग, बट 103 103 हमेशा सेम. 98 98 90 90 87 whatever, that's called a kite. ओके okay. अब मैं एंगल गायब कर रहा हूं. साइड्स के बारे में देखो, ऊपर की दो सेम, नीचे की दो सेम. चाहे कैसे भी हिलाओ, किसी को भी पकड़ो, they will always be remaining same. That's the beauty of kite. एंगल समझा, काइट समझा, अरे साइड समझा. डायगोनल्स और डायगोनल्स में ये प्लस है. डू यू सी अ परफेक्ट प्लस हियर? नो मैटर हाउ यू मूव, यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय दैट प्लस. वो प्लस हमेशा प्लस ही रहता है. और दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ AC and this is not the midpoint of BD. That also remains fixed. तो बीच में 90 डिग्री परपेंडिकुलर, और एक डायगोनल को मिड पॉइंट है और दूसरे का मिड पॉइंट नहीं है. That's called a kite, where there are angles, there are sides, and there are diagonals, and there are rules, and the rule cannot be broken. अगर एक भी रूल ब्रेक हो गया, उस दिन से वो काइट होगा ही नहीं. एक और रूल नहीं है. Done. That is all about kite. Parallelogram.
And now the third and the last one for this lecture, the third quadrilateral which we will try to understand is parallelogram. Once again, write down the topic parallelogram and write the properties of parallelogram as I write down. I will be typing because there is too much to write. My handwriting will be bad. So I am typing, you listen and keep writing the properties of parallelogram. Capital A, sides. मतलब साइड्स के बारे में कुछ बता रहा हूं. पैरेललोग्राम में नंबर 1 पॉइंट, opposite sides are always congruent. लिखो, opposite sides are always congruent. मतलब सेम लेंथ, साइज सेम है. Second point, opposite sides are always parallel. Opposite sides are always parallel. Bracket में, hence two pairs of op sides are congruent and parallel. मतलब दो जोड़ी है ऐसे दो दो साइड्स की, जैसे राम श्याम सीता गीता. तो राम श्याम एक जोड़ी है, सीता गीता एक जोड़ी है. राम श्याम आर कॉन्ग्रुएंट एंड पैरेलल, सीता गीता इज कॉन्ग्रुएंट एंड पैरेलल. That much you have to know about sides. Capital B, angles. पैरेललोग्राम के एंगल्स के बारे में क्या पता होना चाहिए? लिखो नंबर 1, opposite angles are always congruent. आमने सामने के ऑपोजिट दो एंगल्स हमेशा सेम होते हैं. And second point, adjacent angles are always supplementary. मतलब आस पड़ोस के एंगल्स का टोटल 180 होता है. आमने सामने के सेम, बाजू बाजू का टोटल 180, सेम नहीं. ब्रैकेट में, hence two pairs of opposite angles are same. दूसरे ब्रैकेट में, hence four pairs of adjacent angles are supplementary. मैं जब लिखवाऊंगा तब पता चलेगा ये सब क्या है. फिगर के साथ लिखेंगे, बट फिलहाल मेक दिस प्रॉपर्टीज एंटर योर हेड. सी डायगनल्स. डायगनल के बारे में पैरेललोग्राम में क्या पता होना चाहिए? D1 नॉट इक्वल टू D2. और नॉट इक्वल टू कैसे लिखते हैं? इक्वल टू करके ऐसे कट कर देने. D1 नॉट इक्वल टू D2 मतलब डायगनल 1 और डायगनल 2 सेम नहीं है, एक लंबा एक छोटा है. ब्रैकेट में लिखो बिग एंड स्मॉल. सेकेंड, D1 बाइसेक्ट D2. ब्रैकेट में
O is midpoint of both diagonals. D1 bisects D2. O is the midpoint of both diagonals. बस तो बहुत कुछ है समझने के लिए. पैरेललोग्राम इज द बिगेस्ट टॉपिक. देयरफॉर लेट अस स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग अ पैरेललोग्राम one by one. But what is the most basic thing about parallelogram? The most basic thing about parallelogram is that two pairs of parallel sides. बस अगर पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है तो इतनी सारी चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं है. सिर्फ आमने सामने की दो साइड्स पैरेलल हो, जैसे ए बी पैरेलल टू डी सी, एरो एरो, and AD parallel to BC, double arrow, पैरेललोग्राम बन गया. तो पैरेललोग्राम का रूल बहुत सिंपल है. आमने सामने की साइड्स पैरेलल होनी चाहिए. LMON पैरेलल एंड LOMN पैरेलल. ये है तो स्क्वायर, बट स्क्वायर ना एक टाइप का पैरेललोग्राम ही होता है. Therefore it is drawn here, but वो बाद में देखेंगे at the end of the chapter. फिलहाल पैरेललोग्राम बोला तो तुम्हारे लिए ये फिगर महत्वपूर्ण है. काजू कतरी भी पैरेललोग्राम होती है. ये देखो ट्रेपेजियम. This is not a parallelogram because AB and CD are definitely parallel. Good. But this is not parallel. इसलिए नहीं चलेगा. यहाँ पे तो कुछ भी पैरेलल नहीं है. और यहाँ पे BC is parallel to FE या EF. ये देखो BC FE एंड AB ED भी पैरेलल बोला है. ओके, AB ED पैरेलल. लेकिन ये एक्स्ट्रा साइड्स क्या कर रही है? देयर हैज टू बी ओनली 4 साइड्स. पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलैटरल. 4 से ज्यादा साइड होनी ही नहीं चाहिए. तो ये सब टाइम पास छोड़ो. हम लोग हमारी कुंडली के हिसाब से फिगर ड्रॉ करते हैं और हर एक पॉइंट शांति से समझने की कोशिश करते हैं. सो आई एम कीपिंग दिस हियर. यू हैव टू ड्रॉ अ बिग, a neat, a clean figure parallelogram. कैसे? नोटबुक में एक बेस ड्रॉ करो और 5 लाइन छोड़ के सेम लेंथ का एक दूसरा बेस ड्रॉ करो. सेम लेंथ. सो इफ दिस इज measure with your scale, if this is 5 centimeter, this also should be 5 centimeter, and then you join, you will get a parallelogram. Simple. So draw a parallelogram. Left bottom से A, B, C, D नाम दो. Draw the 2 yellow diagonals. मतलब मेरे लिए येलो, तुम्हारे लिए पेंसिल से. And the intersecting point is always called O. तो ये बेसिक कंस्ट्रक्शन है. अब हम एक एक करके प्रॉपर्टीज समझेंगे और प्रॉपर्टीज को हाईलाइट करते जाएंगे. So opposite sides are always congruent. So अब ये वापस लिखना है फिगर के नीचे. ऑपोजिट साइड्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या लिखोगे? कैपिटल A साइड्स नंबर 1 AB is equal to CD, comma BC is equal to DA.
ब्रैकेट ऑपोजिट साइड्स इक्वल, और फिगर में डैश डैश डबल डैश डबल डैश, इसका मतलब है डैश डैश वाली दो साइड सेम है, डबल डबल डैश वाली दो साइड सेम है। लिखो। Second thing you will write down is AB is parallel to CD and BC is parallel to DA, मतलब opposite sides parallel. And how will you show that? Arrow, arrow, double arrow, double arrow. साइड्स में दो ही पॉइंट्स थे आई बिलीव, हाँ, टू पेयर एंगल्स बी एंगल्स, पहला पॉइंट है ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज सेम। तो एबीसीडी में फिगर में पहले हाईलाइट करो, ए पे एक और सी पे एक आर्क बनाओ, बी पे दो और डी पे दो, मतलब ये एक एक आर्क सेम है और डबल डबल वाले सेम है। ए इज इक्वल टू सी, बी इज इक्वल टू डी, राइट दैट डाउन। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, कॉमा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। रीजन, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल। और एक चीज ब्रैकेट में लिखो, टू पेयर्स, दो जोड़ी है ऑपोजिट एंगल्स की जो इक्वल है। एंड नंबर टू, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, ए बी बी सी सी डी डी ए, फिर ऐसे करो, आर एडजेसेंट एंगल्स, देयरफॉर ए प्लस बी 180, बी प्लस सी 180, सी प्लस डी 180, डी प्लस ए 180। वापस ब्रैकेट करो और रीजन लिखो, ऑल फोर पेयर्स, चार जोड़ी होती है एडजेसेंट अड़ोस पड़ोस के एंगल की, ऑल फोर पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, all four pairs of adjacent angles are supplementary. I am keeping here for some time, you copy it properly. तो हाँ, अब ये हाईलाइट तो नहीं कर सकते, देखते हैं यहाँ पे कैसे। समझ लो कि आस पड़ोस के दो एंगल का टोटल हमेशा 180 होता है। देयर इज नो वे टू शो इट, बट एक यूनिक मेथड, अगर तुम्हारे बुक में जगह है, अगर तुम्हारा हाथ साफ है और तुम चोखा लिख सकते हो, तो ऐसा करके 180 लिख दो। मतलब एंगल ए और बी का टोटल 180, ए और डी का टोटल 180, एंगल डी और सी का टोटल 180, और सी और बी का टोटल 180 हो सकता है इफ यू विश टू। बट प्रॉपर्टी याद रखना, आसपास के दो एंगल का टोटल हमेशा 180 होता है। चार पेयर, पारिस्निक पेयर। सी डायगनल्स, डायगनल के बारे में कुछ बताता हूं।
Write down diagonals. Number 1, AC not equal to BD. And it's a fact. तुम स्केल लेके मेजर कर लो, यू विल फाइंड आउट दैट AC एंड BD में से एक बड़ा है और एक छोटा है. So diagonal 1 AC not equal to BD. Diagonals are not same length in a parallelogram. ठीक है, एक्चुअली सेम हो भी सकता है, बट फिलहाल यही लिखो. तुम धीरे धीरे अपना नॉलेज बढ़ाना. 9th और 10th में क्वाड्रिलेटरल भर भर के आने वाला है, पूरा चैप्टर है. तो अभी के लिए ठीक है, नेक्स्ट ईयर इक्वल होगा तब समझाऊंगा क्यों. सो डायगोनल्स आर नॉट इक्वल. सेकेंड, AC बाइसेक्ट BD. अब AC बाइसेक्ट BD का मतलब होता है, ओके लिखो AC बाइसेक्ट BD और BD बाइसेक्ट AC. मतलब एक दूसरे को बीच में से कट करते हैं. AC बाइसेक्ट BD और BD बाइसेक्ट AC के नीचे लिखो देयरफॉर O is midpoint of AC. Arrow. Therefore OA is equal to OC. O is midpoint of BD. Therefore OB is equal to OD. बहुत महत्वपूर्ण चीज, डायगोनल्स एक दूसरे को बीच में से कट करते हैं, जो काइट में पॉसिबल नहीं है. काइट में याद है ओनली वन डायगोनल वाज बाइसेक्टेड और दूसरा बड़ा छोटा टुकड़ा था. यहां पे दोनों बाइसेक्ट होते हैं. दोनों बाइसेक्ट मतलब O is the midpoint of both the diagonals. How will you show that in the figure? OA 3 dash, OC 3 dash. OA is equal to OC मतलब O is the midpoint of AC और यहाँ पे 4 dash OD is equal to OB. Look at the power of geometry. इतना सारा लिखा है, ये सब कुछ फिगर में कम्युनिकेट हो रहा है. So geometry is very powerful mode of communication, but difficult for you. I know that. So that's the end of properties. See, हम last property पे आ गए. Diagonal 1 bisect diagonal 2 मतलब O is the midpoint of both the diagonals, and if O is the midpoint, OA is equal to OC, OB is equal to OD. And diagonal 1 is not equal to diagonal 2. चलो ठीक. That's the end of learning properties of three figures. Next lecture में और 3 figures पढ़ेंगे. फिलहाल क्विक रिवीजन, क्योंकि पैरेललोग्राम मेन है. ऑपोजिट साइड्स आर सेम मतलब AB and CD are same dash dash. BC AD are same double dash double dash. एंड एडजेसेंट साइड्स का कोई रूल नहीं है. एडजेसेंट साइड सेम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो ठीक है. ऑपोजिट साइड सेम. ऑपोजिट एंगल्स आर सेम मतलब एंगल A is equal to angle C and angle B is equal to angle D. बहुत काम आएगा ये प्रॉपर्टी, ध्यान से याद रखना. एंड एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री मतलब A प्लस B का टोटल 180, B प्लस C का टोटल 180, C प्लस D का टोटल 180 एंड D प्लस A का टोटल 180. All right, now we are really starting all the sums. Pay attention and keep writing every sum with me.